To build anything that truly lasts, it takes time. Now, viewers, the opposition has been up in arms against the voter roll revision drive in the state of Bihar. They have been questioning the timing of the exercise. They have questioned the intent of the poll panel and have mongered non-stop by saying that this will disenfranchise voters, or they fire the vote bandi jibe. The door-to-door survey has made some startling revelations. EC sources have revealed that a large number of people from Nepal, Bangladesh and Myanmar have been found by BLOs during house-to-house visits during the SIR drive in the state of Bihar. And what's even more shocking is that these people have been able to procure all documents, including Aadhaar, domicile certificates and ration card. So ECI sources are saying that after proper inquiry that will be conducted from the 1st of August till the 30th of August, if found true, such names will not be included in the final list that is to be published on the 30th of September 2025. Now remember, the ongoing special intensive revision is likely to become a model for the poll panel. But this revelation is now putting the opposition in the dock. The BJP is asking the opposition to take a stand. Do they want foreign nationals to vote in the elections in Bihar? If that is so, is it the reason why they are opposing the poll panel and its voter roll revision drive? But despite these revelations, the opposition has continued to fearmonger. The opposition goes on to say that this is nothing but a planted story by the sources in the EC. Now, in a shocking attack, RJD's Tejasvi Yadav has given out an Arpar warning. He also goes on to say that this is not the state of Gujarat, this is Bihar, where people are alert and the EC cannot take away the right to vote. अब की बार बिहार से आर होगा और मोदी जी और इलेक्शन कमीशन ये ना समझे कि गुजरात है, ये जो है बिहार है और बिहार के लोग सचेत हो चुके हैं, अलर्ट है। आप देखिएगा जहां 90% मतदाता वंचित वर्ग से उनकी रोटी छीन सकते हैं, लेकिन वोट का अधिकार जो है भाजपा इलेक्शन कमीशन छीन नहीं सकती। That's not it. From the planted stories, Bob, to the P jibe, the opposition has gone all out against both the ECI and also media sources. In a fresh attack, it is Tejasvi Yadav who has now, in fact, insulted the media and said that for them, for the opposition, media sources are equal to urine. If, you should listen to this soundbite to believe it. This is what Tejasvi Yadav has said. बात की बात की जाए, ये तमाम लोग अब ये कहा जा रहा है चुनाव आयोग के द्वारा ये कंप्लेन है, वो लोग आके अब फंसे हैं। एक मिनट, इसका चुनाव आयोग से कोई डॉक्यूमेंट या कोई प्रेस नोट या कोई ऐसी बात आई है या कि कहां से खबर आई? सोर्सेज बता रहे हैं, सूत्र बताते हैं, हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं। वे जो होता है ना, ये वो है। नीरज कुमार of the JDU is joining us on the broadcast. नीरज कुमार जी, एक होता है अपोज करना, क्रिटिसाइज करना और सवाल उठाना, लेकिन ये क्या भाषा है? आई एम श्योर आपने भी सुना है कि किस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया है तेजस्वी यादव ने जब ये उनसे कहा गया है कि ईसीआई सोर्सेज के द्वारा ये खबर अभी हमें मिल रहा है कि काफी सारे ऐसे इलीगल्स, स्पेशली नॉन सिटीजन बांग्लादेश से, नेपाल से, म्यांमार से वोटर रोल्स में पाए गए। ये भी पाया गया कि उनके पास आधार और राशन कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट्स हैं। और तेजस्वी यादव ने क्या कहा वो तो आपने सुना ही होगा। सबसे पहले तो लीडर ऑफ अपोजिशन की भाषा जो है, उनको जरा अपना इतिहास याद दिला दीजिए कि क्या यह सच है कि केजे राव के समय हर एक 3 पोलिंग स्टेशन पर पैरामिलिट्री फोर्स तैनात हुआ था। तो चुनाव आयोग का उस समय भी आलोचना ये कर रहे थे और इस
की भाषा घर में भी इस्तेमाल करते होंगे। कोई भी राजनीति में रहने वाला व्यक्ति इस ढंग की भाषा एक संवैधानिक संस्था या लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के बारे में करेगा। अरे हम लोग का भी कोट निकालिए, जो सोर्सेज पर हम लोगों ने बयान दिया। भाई ये चुनाव का मसला और दलित और गरीब आप बोलते हैं तेजस्वी यादव, लज्जा नहीं लगता है। और यही कारण है कि किसी को बोलने नहीं देते हैं, क्योंकि इनके पार्टी के सीनियर लीडर है मंगनी लाल मंडल जी, ये लोग को तो प्रेस ब्रीफ करने नहीं देंगे, क्योंकि हम अकेले दूसरा को तो किसी को आने नहीं देंगे जी, किसी को नहीं बोलने देते हैं जी। और किस भाषा का इस्तेमाल इन्होंने किया है, ये भाषा है, ये जो भाषा का प्रयोग किया है उसका आप खंडन कर रहे हैं, लेकिन जिस मुद्दे की वो बात कर रहे हैं, पूरे INDIA ब्लॉक का ये कहना है कि ये वोट बंदी है, इस एक्सरसाइज के थ्रू EC वोटर्स से उनका राइट टू वोट छीन लेगा। आपको क्यों लगता है इतना वेहेमेंटली पूरा ऑपोजिशन इस एक्सरसाइज को अपोज कर रहा है? ये सीधे तौर पर इसलिए है कि ये लोग सुविधा के अनुसार बदल जाते हैं। स्पेशल रिवीजन हो रहा है, अगर डेथ किसी का हो गया और उसका नाम नहीं काटा जाए, डुप्लीकेसी हो तो उसका नाम नहीं काटा जाए जी। और जिस ढंग का वातावरण ये बना रहे हैं कि मोस्ट बैकवर्ड दलित का अधिकार कैसे छीन लेगा कोई। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, वो राइट टू वोट है हर आदमी को, तो वोट कैसे कोई छीन लेगा। लेकिन ये चूंकि वोट थे लोग, यही लोग वोट लूटता था। राष्ट्रीय जनता दल के समय जब सरकार में चुनाव बनती थी, ये लोग वोट लूटता था। गरीब लोग घर के अंदर कैद, खाने में कैद हो जाता था, घर के अंदर आई भाषण दे रहे हैं। और उसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि अगर आप तो पिटिशनर थे, तो आपने क्यों नहीं इंट्रीम स्टे की मांग किया जी? सुप्रीम कोर्ट में आपके प्लीडर ने क्यों नहीं यह बोला कि इंट्रीम स्टे हो? ये ऑब्जर्वेशन मैंने पढ़ा है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस पे भी ऑपोजिशन का कहना है कि वो उनके लिए एक वैलिडेशन है। बट थैंक यू सो मच नीरज कुमार ऑफ द JDU फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस ब्रॉडकास्ट। नाउ व्यूअर्स, रिमेंबर द ऑपोजिशन has been raising several questions the entire exercise. The opposition also went to the Supreme Court, which did not provide any interim relief, and also went on to say that the EC can continue with the exercise. My colleague Niyamika is with us. Niyamika, today we have information from sources in the poll panel that BLOs, while conducting door-to-door verification with regards to the SIR, found out that there are many citizens from Bangladesh, from Myanmar and Nepal, and the shocking part is that they even have documents like Aadhaar, they have documents like domicile certificate, they have documents like Ration card. The sources in the ECI say that their focus is on transparency and proper scrutiny and verification. But the opposition is now accusing the poll panel and the media of putting in planted stories when such facts are coming to the fore. What is going to be the Congress party strategy with regards to the entire drive in Bihar? Well, as far as the Congress party is concerned, Congress has already approached the Supreme Court regarding this entire exercise, opposing this entire exercise, while on the other hand, they are also claiming that Mahagathbandhan is also going to hit the streets regarding this entire issue. Recently also we have seen that how a mega protest was being planned by the Mahagathbandhan parties in Patna, but on the other side, the manner in which this kind of a language is being used on the part of Tejasvi Yadav, that is very much disgraceful, because he is basically speaking about a constitutional body. He is speaking about the Election Commission of India. On one side, you are opposing this SIR exercise. On one side, you are saying that this is basically an attack upon the democracy, upon the constitutional structure of our country. But this kind of language which they are using regarding a constitutional institution is not acceptable at all, and that is the only reason why we have seen that it has basically also given an opportunity to the BJP JDU to raise a question upon the ideology, the mentality of the Mahagathbandhan party, specifically the RJD in the state of Bihar. Yes. But on the other side, if we talk Niyamika, about do stay with us, because we have Danish Rizwan of the Hindustani Awam Morcha also joining us on this broadcast. Danish ji, मुझे लगता है आपने भी तेजस्वी यादव का वो बयान सुना होगा जब उनसे सवाल पूछा गया कि EC के सूत्रों के मुताबिक ये जाना गया है कि BLOs को डोर टू डोर एक्सरसाइज के दौरान बांग्लादेशी, म्यांमार और नेपाल के नागरिक मिले, उनके पास सर्टिफिकेट भी था। जो लैंग्वेज तेजस्वी यादव ने यूज किया था, मैं शायद वो शब्द अभी ना प्रयोग कर पाऊं बिकॉज इट इज ऑब्जेक्शनेबल, पर द काइंड ऑफ लैंग्वेज द ऑपोजिशन इज यूजिंग टू टारगेट EC, टू टारगेट मीडिया, उस पर आप क्या कहेंगे?
देखिए, ये महागठबंधन और इंडिया अलायंस की पहली भाषा नहीं है। आप जब देश की आजादी के बाद से लेके आज तक की जब बात करेंगे तो देश में पहली बार जब मीडिया के स्वतंत्रता के ऊपर में बैन किया गया और जर्नलिस्टों को पकड़कर श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जेल में बंद किया, तभी ये खामोश थे। और उस वक्त भी किसी तरीके से ये मीडिया के ऊपर में और स्वतंत्र एजेंसिया के ऊपर में, कमीशन के ऊपर में ऑब्जेक्शन लगाना चाहते थे, उनको बंद करना चाहते थे। और आज भी वही है। तो ये कोई नया नहीं है। कांग्रेस का कल्चर हो या राष्ट्रीय जनता दल का कल्चर हो, ये एक कल्चर के लोग हैं। ये खुद गेशन हो ये, और दूसरी बात है ये जो जांच हो रही है पहली बार थोड़ी हो रहा है। इससे पहले भी जांच हुई है, अभी भी हो रहा है और आने वाले वक्त में भी होगा। लेकिन इनके खिलाफ हो रहा है क्योंकि इन लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों में वोटर्स बढ़ा के रखे हैं। बांग्लादेशियों को बुला करके शरण दिया, 2 लोग घर में रह रहे थे, 10 बांग्लादेश से बुला लिया, उनके आधार कार्ड बना दिया, उनका नाम चढ़ा दिया। अब चूंकि हमारे यहाँ देखिए रोजगार हमारा है, हम रोजगार सृजन का कार्यक्रम चला रहे हैं, लोगों को नौकरियां दे रहे हैं, काम दे रहे हैं। लेकिन अब जब आबादी बढ़ जाएगी, बाहर के लोग आकर के हमारे रोजगार को छीन लेंगे, तो हम तो उसकी जांच पड़ताल करेंगे। और अगर ये जांच पड़ताल हो रहा है तो भाई इनके पेट में दर्द हो रहा है। इन्होंने जिस शब्दों का प्रयोग किया ये कोई नया शब्द नहीं है। इन लोगों ने मीडिया के ऊपर में, कमीशंस के ऊपर में, इंडिपेंडेंट एजेंसी के ऊपर में हमेशा से प्रतिबंध लगाया है और ये आने वाले वक्त में लगाने की कहते हैं कि संविधान के रक्षक है। थैंक यू सो मच दानिश जी फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस ब्रॉडकास्ट। सो यू आर सीइंग हाउ द वॉर ऑफ वर्ड्स हैज ब्रोकन आउट ओवर द लैंग्वेज यूज्ड बाय तेजस्वी यादव and also the non-stop attacks coming in from the INDIA bloc with regards to the voter roll revision exercise in the state of Bihar. Now